Hello guys, welcome to my video. Today I am going to explain you about the equation of motion by graphical method. This is a chapter 8 of class 9th, that is motion. In my previous videos I have explained you about what is motion, distance, displacement, graphical representation, velocity, acceleration, representation of distance, time graph, displacement, time graph. Although you can see in my previous video, now it's time to explain what is the equation of motion in graphical method. Now I am going to read one by one and explain you. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion and distance covered by it in a certain time interval by set equation known as equation of motion. जो ऑब्जेक्ट जो मूव करता है कि स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग उसको उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेट कर सके जब वो मोशन में रहता है और एक डिस्टेंस कवर करता है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, और उसको हम लोग एक सेट ऑफ इक्वेशंस से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इक्वेशन पे। और अगर इस सब में से जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन या फिर डिस्टेंस या फिर टाइम कुछ नहीं दिया रहे, तो इस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस सॉरी फॉर कन्वीनियंस अ सेट ऑफ थ्री सच इक्वेशन आर सच बिलो। हमें इजी बनाने के लिए कुछ इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन है u इक्वल टू वी प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज हेयर अ फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी and a is acceleration, that is denoted by this in short, and t is here time. So if there is a absence of initial velocity, we can calculate it by putting the value of v, a and t. So these are some formulas. Now see, these are some equations, sorry. Now second equation of a motion is s is equal to ut plus half at square. S is here denoted the distance or displacement. If here is a displacement, then it is equal to distance, and that means it occurs on a straight line. U is here initial velocity, t is here time, and a is here acceleration, and t square is also time square. So using this formula we can calculate the distance of any object or time or initial velocity. Now third formula is 2as is equal to v square minus u square. 2 is here constant term. A is the variable, that is acceleration. A is variable that is acceleration. And now v square, s is distance or displacement. V square is final velocity and u square is initial velocity, where u is initial velocity of object which move with a uniform acceleration, a for time t, v is final velocity, and s is distance traveled by object in time t. Equation describe the velocity time relation. Equation 8.6 represent the position time relation. Equation 8.7, which represent the relation between position and velocity, can be obtained from equation 8.5 and 8.6 by limiting t. These three methods can be derived by a graphical method. यहाँ पर u है जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर u है जो ये इनिशियल वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है वो a है, एक रिस्पेक्ट ऑफ टाइम जो कि t है, v है ये फाइनल वेलोसिटी है, s जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कितने समय में, t यहाँ पर टाइम है। इक्वेशन 8.5 मीन्स दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन रहता है उसको हम निकाल सकते हैं इक्वेशन 8.5 से, डेट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी। नाउ आवर सेकेंड इक्वेशन 8.6, डेट इज दिस रिप्रेजेंट द पोजिशन टाइम रिलेशन, जो कि पोजिशन और टाइम का रिलेशन मीन्स डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बताता है।
और 8.7 that means थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी, जो रिलेशन बताता है पोजीशन और वेलोसिटी का, जो कि ऑब्टेंड हो सकता है 8.5 और 8.6 ऑब्टेंड होता है। दीज थ्री इक्वेशन कैन बी, और ये जो इक्वेशन है वो हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन क्या है इक्वेशन से, अब हम लोग वो निकालने जा रहे हैं। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज। यहाँ पर एक ग्राफ है जहाँ पर एक ग्राफ है जहाँ पर वेलोसिटी ये जो है वो वर्टिकल है और ये जो है वो हॉरिजेंटल है। नाउ ये है जो ये जो ग्राफ है वो शो कर रहा है यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी इज हियर एंड टी इज इन हॉरिजेंटल लाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ये शो कर रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली चल रहा है। यू है जो हमारा यहाँ पर वो इनिशियल वेलोसिटी है, वी जो यहाँ पर हमारा है वो फाइनल वेलोसिटी है। यू को हम लोग ने ए से डिनोट किया है, और ये जो वी है हमारा फाइनल वेलोसिटी उसको हमने ई से डिनोट किया है। फिर जो टाइम जो है वो हम लोग टी लिखा हुआ है जो कि हम लोगों ने सी से डिनोट किया है। और एक यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट जहाँ पर ये एक ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसका एंड हो रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो उस पॉइंट को हम लोगों ने बी से इस पॉइंट को इस पॉइंट को हम लोगों ने बी से डिनोट किया है, जो कि रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और वेलोसिटी से मिल रहा है। और इससे हम लोग इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। वेलोसिटी गिव्स टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये वेलोसिटी जो इक्वेशन ऑफ मोशन को देता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Here is our topic is completed. Now our next topic is uniform circular motion. What is uniform circular motion? When the velocity of an object changes, जब भी कोई ऑब्जेक्ट when the velocity of कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी चेंज होता है, वी से डैट हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अपन वेलोसिटी चेंज करता है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी चेंज कर रहा अपना, मतलब वो एक्सेलरेशन में आ रहा है, एक्सेलरेशन में है। द चेंज ऑफ वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन और मोशन ऑफ बोथ। और ये जो वेलोसिटी का चेंज होता है वो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड में या फिर डायरेक्शन में चेंज होता है तभी होता है, और दोनों अगर हो तब। कैन यू थिंक द एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्या आप सोच सकते हैं कि कैन यू थिंक एन एग्जाम्पल, क्या आप एक एग्जाम्पल सोच सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इस मैग्नीट्यूड, जब अपना ऑब्जेक्ट अपना स्पीड या मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता है वेलोसिटी के साथ, बट वो सिर्फ अपना डायरेक्शन जो रहता है मोशन का वो चेंज करता है। ये जो मोशन है वो रेक्टेंगुलर ट्रैक के ऊपर है, मीन्स यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर डायरेक्शन चेंज करके वापस इसी पॉइंट पे आ गया। दूसरा यहाँ से अपना स्टार्ट किया डायरेक्शन, वहाँ पर सर्टेन पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे ये चेंज हो रहा है हर जगह पे, सर्कुलर पाथ, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हर सर्कल का एक मेन पॉइंट है कि सर्कल जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई भी सर्कुलर पाथ का ये लगाता है, राउंड लगाता है, तो हमेशा एक्सेलरेट करता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं रहता है कि इसको मोड़ना, ये कंटिन्यूसली एक फोल्ड में है, इसका कोई भी एज होता है जो वो नहीं रहता है, इसीलिए हर डायरेक्शन पे यहाँ पर मुड़ता है। इसीलिए सर्कल में जो रहता है हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन होता है। सर्कल अगर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में है तो वो एक्सेलरेशन करता है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ। एक एग्जांपल लेते हैं, जो बॉडी है वो क्लोज पाथ पर चल रहा है। सो द पाथ ऑफ एथलीट अलॉन्ग अ ट्रायंगुलर ट्रैक ABCD, लेट assume that the athlete run from uniform speed of a straight part AB, BC, CD and D of a track. In order to keep himself on, he quickly changes his speed at a corner. How many times will the athlete have to change the direction of motion while he completes one round? It is clear that move the rectangular plans once he had to change his direction of motion 4 times. यहाँ पर कह रहा है कि ये
ये एक फिगर है ABCD है। यहाँ पर एक एथलीट है जो अपना सॉरी ये एक ट्रायंगुलर पाथ है। यहाँ पर एक एथलीट है जो कि स्टार्ट करता है दौड़ना। वो ए टू बी पहले ए टू बी मूव करता है, देन बी टू सी, देन सी टू डी, डी टू ए, मतलब उसी फिक्स पॉइंट पे वापस वो आ जाता है। लेकिन वो अपना डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ स्पीड कितने बार चेंज करता है, क्योंकि जब भी उसको मुड़ना रहता है, जब भी उसको डायरेक्शन चेंज करना रहता है, वो अपना स्पीड बढ़ा या घटा लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग वो अपना जो स्पीड है, वो अपना जो डायरेक्शन है कितने बार चेंज करेगा। तो पहला बात तो ये एक यहाँ पे डायरेक्शन चल रहा है, तो एक यहाँ पे पॉइंट मिलता है बी से वो चेंज करेगा। फर्स्ट डायरेक्शन जो उसका रहेगा वो बी से चेंज होगा, फिर सी के पास वो आके रुकेगा, फिर वहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर डी से आएगा तो डी के पास से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर ए पे आएगा और ऐसे डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इस तरह से वो 4 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करता है। Now suppose instead of a rectangular track, the athlete along a hexagonal shaped ABCDEF as shown in figure 8.9. In this situation, the athlete had to change his direction 6 times while he completes a round. और इसी तरह अगर वो एक हेक्सागोनल ट्रैक पे चलेगा तो उसको अपना डायरेक्शन जो है इस तरह उसको जो अपना डायरेक्शन है वो 6 टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हेक्साडायगोनल में कितना साइड्स होता है तो 6 साइड होता है, इसीलिए वो अपना डायरेक्शन जो है वो 6 टाइम चेंज करेगा। एथलीट 6 टाइम चेंज करेगा। What track not a hexagon but regular octagon with 8 sides as shown is A, B, C, D, E, F, G, H in figure 8.9. It is observed that as a number of side on the track the athlete has to turn more and more. इसी तरह से अगर हेक्सागन के जगह ऑक्टागन पे अगर एथलीट मूव करता है तो उसको 8 साइड है तो उसको 8 बार मूव करना पड़ता है, और इसी वजह से एथलीट जो है वो जितना नंबर ऑफ साइड बढ़ते जा रहा है उसी तरह से एथलीट का जो टर्न है वो और बढ़ते जाएगा। What would happen to the shape of track as we go on increasing the number side infinitely? और क्या होगा जब हम लोग इस ट्रैक को इस शेप ऑफ ट्रैक है जो वो नंबर ऑफ साइड हम लोग का है, जैसे कि हेक्सागन है उसका साइड कंटिन्यूसली हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं और इन्फिनाइट तक उसको बढ़ाते गए। इफ़ यू डू दिस यू विल नोटिस दैट द शेप ऑफ ट्रैक अप्रिशिएट द शेप ऑफ सर्किल। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नोटिस करिएगा जो शेप है ट्रैक का हेक्सागन या ट्रायंगल से वो धीरे धीरे बनते ट्रायंगल बन जा रहा है। एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड विल डिक्रीज टू द पॉइंट। और लेंथ ऑफ साइड है वो हर पॉइंट पे डिक्रीज करने लगेगा, डिक्रीज टू अ पॉइंट ए। इफ़ द एथलीट मूव विथ अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर एथलीट है वो वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के पर चलेगा सर्कुलर पाथ पे, द ओनली चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसीलिए उसका सिर्फ चेंज होगा वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है। द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ देयर इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। इसीलिए जो मोशन रहता है एथलीट का सर्कुलर पाथ पर ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पर चेंज होता है डायरेक्शन, हर पॉइंट पे यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होता है। वी नो दैट द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस गिवन 2πr। इफ द एथलीट takes 3 seconds to go once round the circular path of the radius, the speed will be is given by। अगर सर्कुलर पाथ पर अगर सरकमफ्रेंस निकाले सर्कुलर का तो उसका रेडियस r होगा, जो कि जिसका फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस निकालने का 2πr। और एथलीट जो है वो 30 सेकेंड में, मतलब अगर वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के सरकमफरेंस पे तो वो 30 सेकेंड में, मतलब जितना टाइम रहेगा उतना स्पीड के साथ वो मूव करेगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है v इक्वल टू 2πr/t। v इक्वल टू 2πr/t।
Now, when an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. और एक यहाँ पर एक और बात है कि जब सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमता है, नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का बात कर रहा है, मीन्स डिस्टेंस कितना कवर्ड हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, उसका जब डिस्टेंस कवर होगा तो हम लोग उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम लोग उसको डिनोट करेंगे. Now moving to the next, I think it's over. Just a para. If you carefully note, in a being released, the stone moves along a straight line diagonal to the circular path. This is because once the stone is released, it continues to move along a direction of its has been moving at that instant. अगर आप केयरफुली नोटिस करेंगे तो अगर एक ये जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन पर एक बंधा हुआ है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से वो सर्कुलर पाथ पे घूमे जा रहा है. उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ का राउंड लगा रहा है. दिस इज़ बिकॉज वन दी, और इसी की वजह से अगर एक बार स्टोन कहीं से भी रिलीज़ होता है, वो जब मूव करते रहता है और वहाँ से कहीं पर भी वो रिलीज़ करेगा, तो जिस मोशन में वो था जिस डायरेक्शन में वो था, वो उसी डायरेक्शन में स्पीड मोशन में आगे की ओर बढ़ते जाएगा विथ दैट एट दैट इंस्टेंट. वो जिस इंस्टेंट में रहेगा, जिस स्पीड में रहेगा, उस स्पीड में उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहेगा. दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट. और ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो रहता है वो चेंज करता है एवरी पॉइंट पर एट अ सर्कुलर पाथ. व्हेन एन एथलीट थ्रो अ हैमर और डिस्कस इन a sport में he she hold the hammer or discuss his hand as given a circular motion of rotating his or her own body. when अगर एथलीट एक हैमर को थ्रो करता है और डिस्कस इन अ स्पोर्ट मीट, थ्रो अ हैमर और डिस्कस इन अ स्पोर्ट्स मीट, ही सी होल्ड, वो ये और वो जो भी हो, लड़का हो या लड़की, वो जो रहता है वो हैमर को होल्ड कर लेता है और अपने हाथ में लेके उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना चालू कर देते हैं अपने ओन बॉडी के थ्रू. Once released, it is desired direction. In its desired direction, the hammer or discus move in a direction in which is moving at the time it is released. और उस को अगर हम लोग किसी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में को रिलीज़ करते हैं, उस हैमर या डिस्कस को किसी भी डिज़ायर अपने मनचाहे डायरेक्शन में हम लोग छोड़ते हैं या फिर उसको मूव करते टाइम रिलीज़ करते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम लोग जिस डायरेक्शन में हम लोग उसको छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं. जस्ट like the piece of stone in actively described above. There are many more familiar example of object moving uniform circular path. और ये कुछ यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म, बहुत सारे एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन पाथ के, सच एज मूविंग ऑफ मून एंड अर्थ, a satellite in a circular orbit around the earth, a cyclist on a circular track at a constant speed and so on. बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मोशन करता है अर्थ है और मून जो रहता है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट है, और सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट लगाता है वो भी एक सर्कुलर मोशन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है. मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर चुका था. थैंक यू. नाउ आवर चैप्टर इज़ ओवर एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस.